We were solving engineering mechanics RTU paper from 2018, and I already told you that this was the last paper in which the new pattern was followed, or rather I should say this was the first year in which the new pattern was introduced, and this new pattern is going to appear in your exam also. We were doing part B, each question wherein carries a weightage of 10 marks. 6 questions will be given to you in part B, and you have to attempt any 4 questions of your choice. In the last class, we did question number 4. It was a lengthy problem, but now today we are going to solve another problem which will not be much deserving of a 10 marks weightage. But let us see what the question says. Please read the question and tell me what you will do with this question. I'm not going to help you. You tell me what has to be done. A pilot flying his bomber at a height of 2000 meters with a uniform horizontal velocity of 600 km per hour wants to strike a target on the earth. At what horizontal distance from the target he should release the bomb? See, I thought that there might be a little bit of confusion regarding how bombs are dropped from a plane, because the actual mechanism might be picturized in different ways in different people's minds. Some people might think that a rocket is launched from a plane, so that apart from the velocity of the plane itself, the rocket will have some additional velocity. And some people think that would the bomb be simply dropped like dropping a stone from sky? जैसे आसमान में कोई प्लेन जा रहा है और प्लेन से आपने कोई पत्थर नीचे डाल दिया, क्या बॉम्ब ऐसे डाला जाता है? So you should also have a good visualization of how dropping of bombs is done. So I have searched for a video on internet and I found one that I can show you. Please look at this video. Can you see the video? Now see, here the bomb is simply dropped as if you are dropping a stone. जैसे कोई पत्थर को गिराते हैं उसी तरीके से बम गिराया जाता है. वापस से देखिए. See, the doors, the chamber has been opened, the bomb is simply held and now it is dropped. छोड़ दिया है बस. The bomb will be launched later on, but earlier the bomb was simply dropped. नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे उसको ऐसे ही छोड़ा गया था प्लेन से, सिर्फ ऊपर से डाल दिया नीचे. Can you see the video? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I think now you have understood how a bomb is dropped from a plane. तो बॉम्बर्स जो होते हैं वो इस तरह के बॉम्ब्स कैरी करते हैं, और इनके जो मैकेनिज्म्स होती हैं दैट डू द कैलकुलेशंस इन. ये अपने पायलट बैठ करके कैलकुलेशन नहीं करता है, लेकिन जो भी मैकेनिज्म है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, द कैलकुलेशन ऑफ व्हेन टू ड्रॉप द बॉम्ब so that after dropping the bomb exactly goes and strikes a particular target on the ground. तो उसकी कैलकुलेशन हालांकि इतनी सिंपलिस्टिक नहीं होती जैसे अपन अभी करने जा रहे हैं, लेकिन अपन ये मानेंगे कि विंड रेजिस्टेंस नहीं है, हवा ज्यादा तेजी से किसी डायरेक्शन में चल नहीं रही है. तो इन सब चीजों को मानते हुए सिंपल कैलकुलेशन कैसी होगी, मैं एक बार दिखाता हूं कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू डू. पायलट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर. तो कितनी हाइट पे प्लेन चल रहा है ये दे दिया. विद अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और स्ट्रेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 600 kmph से. wants to strike a target on the earth. At what horizontal distance from the target he should release the bomb? This is the question. So your question boils down to something like this. The plane is here. This is the vertical distance from the ground, which is given as 2000 meters.
So this height is 2000 meters. The constant height at which the plane is flying, and the plane is flying horizontally with a velocity of 600 kmph. 600 kilometers per hour. Now, should I use the value 600 kilometer per hour or should I change it to something else? What is your opinion? सर यही रहेगी क्योंकि ऐसा यूज Change करना it. इसको यूनिट चेंज करने की जरूरत है या मैं 600 ही यूज कर लूं कैलकुलेशन में? सर 600 यूज कर लो तो सर फिर कुछ और मुझे चेंज करना पड़ेगा. I am talking about the instruction that I gave you regarding usage of SI units. आपकी हाइट जो चीज दे रखी है वो मीटर में दे रखी है और आप स्पीड यूज कर रहे हो किलोमीटर पर आवर में. इज दैट ओके? नो सर सर मीटर पर सर सेकंड चेंज चेंज कर कर देते हैं. कैसे चेंज करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में? multiplied by 5/18. यस. तो पहला काम तो ये करना है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिख जाए, यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. नाउ द स्पीड बिकम्स इन मीटर पर सेकंड. अब ये कंपैटिबल हो गए. ठीक है. सो द फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन, द हाइट इज गिवन. अब क्वेश्चन ये है, द प्लेन वांट्स टू स्ट्राइक अ टारगेट ऑन द ग्राउंड. लेट अस से द टारगेट इज हियर. यहां पर बॉम्ब गिराना चाहता है बॉम्बर. तो ये पूछा जा रहा है कि बॉम्ब तो वो सिर्फ ड्रॉप करेगा, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, द बॉम्ब विल बी सिंपली ड्रॉप्ड. बट व्हेन द बॉम्ब इज सिंपली ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लेन, तो भी उसकी एक वेलोसिटी रहेगी बॉम्ब की. जैसे बॉम्ब यहां पे ड्रॉप हुआ तो प्लेन के अंदर ही था ना ये बॉम्ब. तो प्लेन की जो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से ये बॉम्ब भी चल रहा था, और जैसे ही प्लेन से ये बॉम्ब छूटेगा ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा. It will go on a trajectory like this, on a parabolic trajectory, and it will eventually fall down at some distance on the ground. तो अगर बॉम्ब को यहां पर छोड़ा गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली exactly आपकी डिजायर्ड लोकेशन से कितनी एक्स डिस्टेंस पर इस बॉम्ब को छोड़ना चाहिए अगर वो 2000 मीटर ऊपर से उड़ रहा हो और उसकी वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर हो तो. This is the question. Now I hope you have understood the question. ये पैराबोला और आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है सीधे सीधे. Now you tell me how will you solve it. यहाँ पे बॉम्ब रिलीज किया and the bomb reaches the destination. Let us say the destination is at a distance of x from the point where it was released. तो यही पूछा है कि एग्जैक्टली इस लोकेशन पे बम गिरे उसके लिए ये एक्स डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसपे कि पायलट डिसाइड करे कि मुझे अब बम को छोड़ देना है. कैसे करोगे बताओ. चलो अब मैंने फिगर भी बना दिया है. नाउ यू शुड लुक एट द प्रॉब्लम लाइक दिस. यू सिंपली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन ज्योमेट्री. यूज द फॉर्मूले दैट यू नो. और मैं तो आपसे ये कहूंगा, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एक हिंट दे रहा हूं आपको. ये सिंपल काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है. इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके काम बन जाएगा आपका. बट आई एम नॉट गिविंग एवरीथिंग अवे. आई वांट यू टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आउट ऑफ दिस जो आप यहां यूज करोगे. क्या करोगे बताओ. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट. तो आप इस चीज से जज कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं करना आ रहा है तो आप कितने पानी में हो, कि आरटीओ का एग्जाम फेस करने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो. यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट. एक्स पता करना है बस आपको.
तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, इसमें v कहाँ से लाओगे? सर v का मतलब है डेस्टिनेशन पे जब बॉम्ब पहुंच जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए, द बॉम्ब विल रीच द डेस्टिनेशन समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आएगा। तो उसका एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग द फाइनल वेलोसिटी v? नो सर। So this is not the appropriate equation. सर फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली को कैसे यूज करोगे? क्या क्या प्लान क्या है आपका? फर्स्ट वाली में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या डालोगे ये बताओ। सर यू तो कांस्टेंट स्पीड जो थी उसकी वही है ओके 600। और t और कहां से लाओगे? t का मतलब है टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन, वो मिलेगा। आप s की जगह x रखना चाहते हो और u की जगह ये कांस्टेंट स्पीड रखना चाहते हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितनी है उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन? एक्सेलरेशन कितनी है बताओ अक्षित। सर फ्री फॉल में है तो 9.8 होनी चाहिए। ना ना, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ। अक्षित ने जो प्लान बताया, उन्होंने ये बताया कि s के अंदर तो x को रख देंगे और u जो है वो ये है, इज ट्रीटिंग दिस वेलोसिटी एज u। तो अपन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेलरेशन को 9.81 लेते हो तब आप वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हो। देखो, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक चीज अब याद कर लो, पहले भी बताया था आपने, सॉल्व भी किए अपन ने काफी क्वेश्चंस इस तरीके के। थोड़ा सा कम कुछ पड़ रहा है तो इट्स ऑन योर बिहाफ, योर प्रैक्टिस इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वर्टिकल मोशन हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, हॉरिजॉन्टल मोशन हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को देखूं तो इसका एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है? सर 0। जीरो। वेरी गुड। भाई आपको बोल दिया कि हॉरिजॉन्टली द प्लेन इज फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये इक्वेशन नहीं यूज हो रही, अब अगर अपन ये इक्वेशन यूज करते हैं तो अपना प्लान ये है कि मेरे को x पता करना है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज 0, तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो गई। तो x इज इक्वल टू यू इंटू टी हो गया। x पता करना है, u भी मुझे पता है, u कितना है, ये रहा। u का मतलब द इनिशियल वेलोसिटी। अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इनिशियल और फाइनल सब एक ही है, एक ही वेलोसिटी है बस। सो यू यूज दिस वेलोसिटी एज u, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये t नहीं पता, बस किसी तरीके से मेरे को ये t पता लग जाए तो मैं सीधे सीधे u जो है मेरे को पहले से ही पता है, इसको t से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इससे मेरे को x मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे मेरे को ये t मिल जाए, यानी कि कितने टाइम पे यहां पे ड्रॉप किया हुआ बॉम्ब यहां पहुंच जाएगा? वंस अगेन remember that I told you you can easily treat the horizontal and vertical motions separately। तो अभी अपन ने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की थी, ये सेम इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए भी लग सकती है दोबारा। तो आप ये मत सोचना कि एक पैराबोलिक मोशन के अंदर ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बस एक ही बार लग सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल पे लगा लो या वर्टिकल पे लगा लो, ये दोनों पे लग सकती है।
सर Now, एस 2000 ले लेंगे और यू जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो ले लेंगे s को कितना लोगे? 1000। 2000 ले लिया। अब आप वर्टिकल की बात कर रहे हो, अब मेरे को बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। So when you are treating the parabolic motion for vertical direction, the distance will be vertical 2000. But since the velocity of the bomb and the plane are aligned purely in the horizontal direction, vertical direction में u की velocity 0 है, u की value 0 है. So once again, if you use this equation, s is equal to ut plus half at square. ठीक है, तो अब इसमें क्या करने का, s को आपने बोला मैं 2000 ले लेता हूं, so that means now you are using the vertical one, u becomes 0, तो ये टर्म खत्म हो गई. So 2000 is equal to half. Now what is the acceleration in the vertical direction? Vertical direction में acceleration है या नहीं है? सर 9.81। Yes. Now there is an acceleration equal to g. So this is half of 9.81 into t square. मिल गया क्या t आपको? यस सर। इसमें लॉजिक क्या है भाई? बॉम्ब जब आपकी ड्रॉप हो रही है, बॉम्ब का एक्चुअल ट्रैवल तो इस लाइन पे हो रहा है, ये देखो, दिस इज द लाइन ऑफ ट्रैवल ऑफ द बॉम्ब. तो आप ये कह सकते हो कि एट एवरी इंस्टेंट द बॉम्ब इज ड्रॉपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, ड्रॉपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, ड्रॉपिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. तो इसी को आपने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके देखा है. तो जितना टाइम बॉम्ब को वर्टिकली 2000 मीटर कवर करने में लगेगा, एग्जैक्टली उतना ही टाइम बॉम्ब को एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने में भी लग रहा है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें. तो एक बार तो आपने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वर्टिकल मोशन के लिए यूज किया एंड यू फाइंड द टाइम. टाइम बताओ इसमें, जरा निकालो कितना आ रहा है टाइम. सर 20.17 seconds. ओके, 20.17 seconds. That is approximately correct. करेक्ट आंसर है 9.81 अगर आप यूज करते हो तो. अब क्या करें इस टाइम का? नाउ यू गो बैक हियर. ये चीज अपन पहले से डिसाइड करके बैठे हैं. अब आपको u भी पता है और t भी पता है. सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब इसमें अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना. आई थिंक वी कैन फिनिश ऑफ विद दिस प्रॉब्लम. टाइम मिल गया. अब आप वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे जाएंगे वापस. हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने ये कहा कि x डिस्टेंस बॉम्ब को ट्रैवल करने में t टाइम लगा था, वही t टाइम जो 2000 मीटर ड्रॉप होने में लगा. तो अब मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. बस. अब आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux पता है, दिस इज योर ux. टाइम पता लग गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सीधे सीधे x की वैल्यू पता करें. सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ फाइंडिंग or estimating the distance at which the bomb should be released from the plane in such scenarios. ठीक है, क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम वाइब्रेशन. इसमें पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन 2018 के करिकुलम में आपके सिलेबस में था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे. We will skip question number 6. Let us come to question part C. Part C अब 15 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं. इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे in which you have to attempt any 2. और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं आपको कहूंगा जरूर अटेम्प्ट करें इसको. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इजी. डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसको फॉलो करते जाना है. दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना होता है. बस एक कोने से स्टार्ट किया, रिएक्शन पता करो, रिएक्शन पता करने के बाद में एक एक कॉर्नर को पकड़ पकड़ के सॉल्व करते चलो.
सिली मिस्टेक अगर नहीं करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स, और इसमें इतना टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। 15 मार्क्स की इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में है। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, लेट अस सी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स की फोर्सेस निकालनी है। एंड दे आर सेइंग इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस। ये नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होता है? नेचर का मतलब सर कंप्रेहेंसिव है या फिर सर कंप्रेशन या टेंसिल। यस, और ये बोल रहा है कि सिर्फ पता ही नहीं करना है, इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस ऑन द डायग्राम ऑफ द ट्रस। तो आपको ये काम भी करना है, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद ये फिगर एक बार बनाना है, और उसके बाद कौन कौन से मेंबर्स में कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, कौन कौन से में टेंसाइल फोर्स आ रही है, ये भी शो करना है। अब ये एक बार पहले इसको देख लेते हैं कि सॉल्व करना तो आप में से कई जनों को आता भी है और सिंपल भी है, लेकिन एक्चुअल नेचर ऑफ फोर्स को कैसे शो करते हैं। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, ए बी सी, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एक ऐसे रैंडम एक ट्रस बना लिया। सो देर आर 3 मेंबर्स, ईच ऑफ देम आर जॉइंट विद अ पिन जॉइंट। अब मैंने ये कहा ए बी मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है, बी सी मेंबर में टेंसाइल है, और ए सी मेंबर में फिर से कंप्रेसिव है। हाउ डू वी शो इट? कंप्रेसिव फोर्स का मतलब है कि आपकी रॉड जो है, आपका मेंबर जो है, दैट शुड बी प्रेस्ड इनवर्ड्स, यानी कि आप जैसे दो हाथ के बीच में रॉड को पकड़ के आप उसको दबाओ तो उस पर कैसी फोर्स लगेगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो इट। ए सी में कंप्रेसिव फोर्स इज लाइक दिस, ए बी में कंप्रेसिव फोर्स इज लाइक दिस, और टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है? एक रॉड को हाथ में पकड़ के बाहर की तरफ खींचे तो रॉड को कैसा फील होगा, ये बताना है। So this should be like this. This is tensile, compressive, compressive. समझ में आया आपको कैसे शो करना है? यस सर। ठीक है, सर ये एग्जांपल है क्या? हाँ क्या बोल रहा हूँ? सर ये एग्जांपल है सर, या फिर ये पर्टिकुलर सर ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है सर इसके लिए है ये वाला पार्ट? ये मैंने अपने मन से एक एग्जांपल बताया। ओके सर। अब यही काम इस तरह से जो आपने अभी समझ लिया कि कंप्रेसिव और टेंसाइल को कैसे शो करना है, ये चीज आपको आपके प्रॉब्लम में बना करके दिखानी है। पहले अपन एक काम करेंगे, वी विल फाइंड ऑल द फोर्सेस। लेट अस डू दैट एक्सरसाइज फर्स्ट। अब देखो, ट्रसेस के लिए आपको दो चीजें सिखाई गई थी। फर्स्ट मेथड वाज मेथड ऑफ जॉइंट्स, द सेकंड वन वाज मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या करते थे? आपको कोई ट्रस दे दिया है एंड मेथड ऑफ सेक्शंस इज सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय यू व्हेन दे आस्क you to find the value of member forces at some specific locations only। तो जैसे कि आपको कहा कि इस वाले मेंबर में, इसमें, इसमें और इसमें पता करो बस, और किसी में नहीं चाहिए हमें। तो आप क्या करते हो इस केस में? यू ड्रॉ अ सेक्शन लाइक दिस। सेक्शन कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस, मगर essential thing is that you have to draw a section cutting those members on which forces are required। और उसमें भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे, अपन अभी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यू मेक अ सेक्शन प्लेन और सेक्शन लाइन लाइक दिस, एंड देन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल, उसके अलग वो है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अपना आता है तो वो डिस्कस कर लेंगे, या बाद में अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको क्या कहा गया है प्रॉब्लम में? द प्रॉब्लम इज आस्किंग यू टू फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स। नाउ प्लीज रिमेंबर, whenever a truss problem comes in which you are required to find forces in all members, you must always go for method of joints। method of joints को यूज करना आसान है।
अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी आपको एक बात बता दूं कि अगर मेथड ऑफ सेक्शंस आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप अगर क्वेश्चन में अगर ये नहीं दे रखा कि भाई मेथड ऑफ सेक्शंस या मेथड ऑफ जॉइंट्स को स्पेसिफिकली यूज करना है, तो इवन अगर आपसे कुछ स्पेसिफिक बीम्स पर या स्पेसिफिक मेंबर्स पर अगर फोर्स पूछें तो उसमें भी आप मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज कर सकते हैं। उसमें बस नुकसान यही होगा कि मेथड ऑफ जॉइंट सिस्टमैटिकली एक कोने से स्टार्ट होता है, तो पहले यहां से स्टार्ट होगा, वो यहाँ पे फोर्स निकालेगा, यहाँ पे फोर्स निकालेगा, फिर आप इस वाले जॉइंट पे आओगे, फिर वो इस पे निकला हुआ फोर्स यूज करके इस पे निकालेगा, इस पे निकालेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो हो सकता है कि 2 स्टेप आपको ज्यादा लगे, बट अगर मैं ये आपको सजेस्ट करूं कि बिना गलती के अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहतर मेथड कौन सा है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू मेथड ऑफ जॉइंट्स, एंड आई विल रादर गो 1 स्टेप अहेड एंड टेल यू कि जहां तक पॉसिबल हो मेथड ऑफ सेक्शंस मत यूज करो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ पार्शियल सेक्शन बनाना पड़ता है, रिएक्शंस को लेके आकर के आगे भी कॉम्प्लिकेशंस आती है। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल कंपैरेटिवली आई विल ऑलवेज साइड विद मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, बट एनीवे अभी वाले प्रॉब्लम में तो अपन को मेथड ऑफ जॉइंट्स ही यूज करना है, क्योंकि ये सब में फोर्सेस पूछ रहा है। सो व्हेन फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स आर आस्क्ड, ऑलवेज गो फॉर मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या तरीका लगता है, किसी को याद है क्या? डज एनीबॉडी रिमेंबर हाउ मेथड ऑफ जॉइंट्स इज अप्लाइड? सबसे पहला स्टेप क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? सबसे पहला स्टेप क्या है? जॉइंट की एफबीडी। ये सर एफबीडी, सर एफबीडी ऑफ ईच पार्ट सर। एफबीडी ऑफ ईच जॉइंट, कितने जॉइंट्स हैं इसमें? 7। एक, नो नो, 7 तो मेंबर्स हैं। ओके ओके सर। 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, सर 5 5 जॉइंट। 4 जॉइंट, 5 जॉइंट। सो देर आर 5 जॉइंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 बार जॉइंट्स पे जाकर के इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जैसा कि आप में से अभी एक जने ने कहा कि इस प्रॉब्लम मेथड ऑफ जॉइंट्स में करते क्या है, यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच जॉइंट वन एट अ टाइम। और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उस जॉइंट पे आपको लगाना क्या होता है, you simply have to apply summation of horizontal forces is 0, summation of vertical forces is equal to 0। बस ये चीज करते जानी है हर जॉइंट पे जाकर के। इसमें मोमेंट्स नहीं आती हैं। क्यों मोमेंट्स नहीं आती हैं? क्योंकि एक जॉइंट पे आपके सारे मेंबर्स आकर के कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। कोई भी जॉइंट लोगे उसमें सारे मेंबर आपको मिलते हुए दिखेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट के अबाउट कभी भी मोमेंट लोगे तो सारे मोमेंट तो 0 ही आएंगे। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स कि इसमें समेशन m इक्वल टू 0 यूज करना ही नहीं पड़ता। आपकी इक्विलिब्रियम है ना ट्रस की, बेसिकली ये समेशन m समेशन f की बात मैंने क्यों एकदम से करी आपसे, बिकॉज फॉर एवरी जॉइंट यू विल ड्रॉ द एफबीडी एंड यू विल से कि ये जॉइंट मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा। आपने लोडिंग कर दी ट्रस के ऊपर, ट्रस की लोडिंग होती ऐसी है, वो लोड को लेके बैठा रहता है। इट इज यूज टू सपोर्ट द एक्सटर्नल लोड्स, इसमें मोशन नहीं होता। तो आप ये हर जॉइंट पे जाकर के यही सेम कहानी रिपीट करते हो, भाई यहाँ पे मोशन नहीं है, यहाँ पे मोशन नहीं है, दैट मीन्स ऑल द जॉइंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात कहीं दूर से भी सुनाई दे, आपके माइंड में ये घंटी बज जानी चाहिए, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी इज 0, summation of all the vertical forces of equilibrium body is 0, and summation of all the moments about any point on the plane of the equilibrium body is also equal to 0. These are the 3 staple equations of equilibrium. अब इसमें जैसा मैंने कहा मेथड ऑफ जॉइंट्स में जॉइंट का एफबीडी बन रहा है, एंड जॉइंट इज एसेंशियली अ सिंगल पॉइंट एट विच ऑल द फोर्सेस आर कन्वर्जिंग। तो इसमें समेशन m इज इक्वल टू 0 तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मोमेंट्स 0 बनेंगे, कोई मोमेंट ही नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू यूज दिस इक्वेशन इन मेथड ऑफ जॉइंट्स। सिर्फ ये 2 इक्वेशंस यूज करते चलो और बहुत प्यार से सारे मेंबर्स की फोर्सेस आ जाती है। मैं एक जॉइंट का आपको करके दिखाऊंगा और बाकी का सारा आप लोग पता करेंगे। लेकिन आपने अभी भी एक चीज गलत बताई
You don't start the problem by directly starting with the FBD of joints. First, you have to find the reactions at supports. Support reactions, that means the value of RA and the value of RD. ये पहले पता करनी पड़ेगी, उसके बाद में जॉइंट्स का एफबीडी बनाना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? लेट अस ड्रॉ द फिगर। अभी अपन मेंबर्स की कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, अभी अपने को सिर्फ रिएक्शंस से मतलब है। सो द फर्स्ट स्टेप इज forget about joints and forget about members. You simply look at the location of reactions and simply look at the location of loads. कि रिएक्शन कहां पे लग रही है? आर ए आर डी, दो जगह पे रिएक्शन लगा दी। और लोड्स कहां कहां पे लग रहे हैं? दो जगह पर नहीं, तीन जगह पर है। एक 40 किलो न्यूटन, एक 50 किलो न्यूटन और एक ये 60 किलो न्यूटन। तो यू अप्लाई दीज थ्री लोड्स 40, 50, 60। ठीक है, सो दिस इज 40 kilonewton, this is 50 kilonewton, and there is another one here 60 kilonewton। हाँ जी, बताइए आर ए और आर डी कैसे निकालें? ये फिगर और देख लो आप, डिस्टेंसेस भी ले लेते हैं अपन 2 मीटर। बस ये दो डिस्टेंसेस दे रखे और बाकी सारा ये दे रखा है all inclined members are at 60 degree to horizontal and length of each member is 2 meter। तो इससे मेरे को एक साफ साफ बात पता लग गई कि इसमें तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। all these three triangles are which type of triangles? Isosceles. Equilateral। Yes sir, equilateral. दे आर ऑल इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड बराबर हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। ठीक है, और अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की एक खासियत और होती है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सॉरी एक लाइन अगर वर्टेक्स से मैं ड्रॉप करूं, तो वो उसकी बॉटम लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पता है ना मेरे को? मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को अब ये आर ए और आर डी पता करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए कि कौन से साइड से ये 40 किलो न्यूटन कितना दूर है, ये 50 किलो न्यूटन कितना दूर है। मेरे को ये डिस्टेंसेस चाहिए होंगे अब, इसीलिए कर रहा हूं ये ज्योमेट्री। ठीक है, ये आ गई अब आपकी ज्योमेट्री। ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल एंड द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 2 मीटर। अब बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बताइए कैसे निकालूं मैं आर ए और आर डी? आर ए और आर डी निकाले बिना आप जॉइंट्स में नहीं जा सकते। सर अबाउट डी लेंगे सर, अगर अबाउट डी लेंगे क्या करना है अबाउट डी? अपन को मोमेंट सर लेना है। देंगे। आर वी टेकिंग द मोमेंट और नॉट? यस सर, वी आर टेकिंग मूवमेंट। ठीक है, चलो अब आपके कहे अनुसार चलते हैं। लेट अस टेक द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट, यू वांट पॉइंट डी, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में आप बताते चलिए अब कितनी फोर्सेस हैं इस फिगर में। एक आर ए आर डी, दो और बाकी तीन अप्लाइड लोड्स। देयर आर 5 लोड्स and now you have to take the moment of all the forces about point D. So with proper sign convention tell me क्या क्या आएगा, बताते जाओ। पहले आर ए ले लें। यस सर। आर ए का डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना आ रहा है? RA सर into 4. पॉजिटिव आर ए इंटू 4। पॉजिटिव आर ए इंटू 4 आएगा या माइनस आर ए इंटू 4 आएगा? Minus RA. देखो सबसे पहले तो सिस्टमैटिकली चलो।
अभी इस फिगर में सबसे पहले आप ये डिक्लेयर करो कि सिंस दिस फिगर इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर आई एम गोइंग टू यूज summation of moments equal to 0 about point D। मैं ये करने जा रहा हूं, ये पहले बता दो। बस इतना लिखना काफी है जैसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है, पूरी सेंटेंस नहीं लिखनी। अब लिखो इक्वेशन आर ए इंटू 4। अब देखो आर ए लग रहा है यहां पे, 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये पॉइंट है डी यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये आर ए जब रोटेशन कॉज करेगा यस मूवमेंट सर क्लॉकवाइज सर माइनस आर इंटू 4। क्लॉकवाइज हो गया ना, सो दिस बिकम्स माइनस। तो पहली इक्वेशन के अंदर पहला मोमेंट आर ए का रहा -4 आर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्स पे आ जाओ। नेक्स्ट फोर्स है आपकी 40 किलो न्यूटन। सर प्लस 40 इंटू 3। 40 इंटू 3 कैसे? क्योंकि ये फोर्स जो है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास होगा, एंड सिंस दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल देयरफॉर इट विल स्प्लिट दिस बॉटम 2 मीटर रॉड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गया 1 मीटर प्लस यहां पे 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी डी पॉइंट से? सर 3 मीटर्स। 3 meters। एंड सिंस द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो इसका मोमेंट जो होगा ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, which is treated as a positive moment। यस सर। You will take plus 40 into 3। ओके, अब अपन आगे जल्दी जल्दी चल सकते हैं। फिर उसके बाद की सेकंड थर्ड फोर्स है 60 किलो न्यूटन। सर प्लस 60 इंटू 2। ओके, प्लस 60 इंटू 2। आगे चलें, प्लस 50 इंटू 1। ओके, प्लस 50 इंटू 1। और आर डी का क्या होगा? 0। सिंस आर डी इज एक्टिंग एट पॉइंट डी इटसेल्फ, तो आर डी का मोमेंट 0 होगा, तो इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस के मोमेंट होंगे और आपने समेशन कर दिया, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। नाउ क्विकली टेल मी द वैल्यू ऑफ आर ए। सर 72.5। करेक्ट आंसर। यूनिट इज किलो न्यूटन, ठीक है। अपन ने Yes, उसको sir, न्यूटन किलो में नहीं किया, किलो न्यूटन ही रहेगी। सो आर ए इज 72.5 किलो न्यूटन। नाउ आई हैव ऑलरेडी फाउंड आर ए। अब आर डी कैसे निकलेगा ये बताओ। सर आर ए के सर ये अबाउट जितनी भी फोर्सेस है सर इनका एडिशन करके फिर आर ए को उसमें से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली तो अपन ये आपने जो बात कही ये इंट्यूटिवली कही, लेकिन एक्चुअली मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी में आप क्या कहोगे? वंस अगेन यू विल से दैट सिंस द एंटायर ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम, so I can also apply this equation summation of all the vertical forces is 0। तो अब अपवर्ड फोर्सेस को मैं पॉजिटिव मानूं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव मानूं, तो मेरी फिर एक और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल बिकम आर ए प्लस आर डी -40 -50 -60 इक्वल टू 0। ये मैंने कौन सी इक्वेशन बनाई है? समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको आर ए तो पता लग ही गया है, तो आर डी कितना आएगा इस इक्वेशन को यूज करके बताओ। सर 77.5 किलो न्यूटन। आर डी इज 77.5 किलो। ओके, नाउ सर वंस यू हैव, हाँ बोलो। सर ये आर डी अपन आर ए के अबाउट मूवमेंट लेके नहीं फाइंड आउट कर सकते थे क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने जैसे ए के डी के अबाउट मोमेंट लेकर के आर ए पता किया, अब आप इसका उल्टा कर लो, वापस से ये अप्लाई करो। आप ये कह सकते हो आई एम नाउ अगेन अप्लाइंग द इक्वेशन मोमेंट्स का सम इक्वल टू 0 बट दिस टाइम अबाउट पॉइंट ए। ये करोगे तो इससे भी वही सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा आसान है ना, सीधे सीधे जैसा बोला, ये इंट्यूशन अपने को पता है भाई, नीचे को 3 फोर्स लग रही है, ऊपर को 2 फोर्स लग रही है,
तो टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के, आर ए प्लस आर डी विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, उससे सीधे सीधे आर ए आ जाएगी। तो अब आपको जैसे पसंद हो वैसा कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, एंड यू कैन डू इट। यस सर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अब ये रिएक्शंस पता लग गई, नाउ यू स्टार्ट ऑन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग द इंडिविजुअल मेंबर फोर्सेस, और उसके लिए अपन को एक जॉइंट पे जाना पड़ेगा। अब अपन देखें प्रॉब्लम में इन्होंने जॉइंट्स की कोई नंबरिंग दे रखी है क्या? इन्होंने नंबरिंग नहीं दे रखी, इन्होंने लेटरिंग दे रखी है। सो जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी, जॉइंट डी एंड जॉइंट ई। सो वन बाय वन we will go to each joint and make the FBD of the joint and then find the forces therein. अब इसका फिगर कैसे बनाना है? सिंपल है, आपको पेपर में ऐसे लिखना है FBD ऑफ जॉइंट ए, ये लिखा, एक पॉइंट बनाया, मार्क इट। अभी मार्किंग अपन बाद में करते हैं क्योंकि कहां से कौन सी फोर्स आएगी ये नहीं पता। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब पॉइंट ए पे जाओ, ये आपका पॉइंट ए है, इसकी अब मैं जरा मार्किंग भी कर देता हूं। ए, दिस इज डी, बी सी डी ई, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ई। अपने को जॉइंट्स भी पता लग गया। ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट ए? अच्छा ये 60 डिग्री है, अब अपन को एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी। सर 2 forces are acting on 2 joint और A. 3, 2 एक्ट कर रही है कि 3 एक्ट कर रही है? सर 3 RA भी है। आर ए भी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मैं ये जानता ही नहीं हूं कि मेंबर ए बी जो है, इस मेंबर में ए जॉइंट की तरफ को फोर्स आएगी या ए जॉइंट से दूर को फोर्स जाएगी। आई डोंट नो दैट, मेरे को नेचर नहीं पता, पता नहीं है ना, अभी पता किया ही नहीं अपन ने। उसी तरीके से आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स ऑन ए ई सेक्शन ऑल्सो। मैं ये नहीं जानता कि इस पे जो फोर्स आएगी वो ए जॉइंट से दूर को जाएगी या फिर ए जॉइंट की तरफ को आएगी। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है? माय सजेशन इज इनिशियली यू टेक एन assumption that all forces, unknown forces are going away from point A. तो point A पे ये मेंबर जो है, यानी कि ए बी मेंबर जो है, ये ए से दूर को जा रहा है फोर्स, और उसी तरीके से नीचे वाले पे भी ए से दूर को जा रहा है फोर्स। एंड दीज फोर्सेस हैव टू बी डिमार्केटेड एज, ये चूंकि ए बी मेंबर है तो मैं इसको नाम दूंगा एफ ए बी, अननोन फोर्स है। और मैंने एज्यूम कर लिया है कि एफ ए बी इज गोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम ए एंड दिस इज पॉइंट ए। और एक फोर्स जो अपन को पता है वो ये है कि आर ए जो है वो जॉइंट ए की तरफ को आ रहा है, इनवर्ड कमिंग फोर्स, एंड दिस इज फोर्स ए, दिस इज 60 डिग्री। बस बन गया एफबीडी ऑफ जॉइंट ए, इतना ही बन करना है अपने को। अब इस पे क्या करना है? एक बार जॉइंट्स के ऊपर अपना काम स्टार्ट हो जाए, देन यू ऑलवेज हैव टू डू ओनली वन थिंग, summation of horizontal forces equal to 0, summation of vertical forces equal to 0। चलो ठीक है, अब इसको लगाओ। आर ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। आर ए की वैल्यू कितनी निकाली है? 72.5 किलो न्यूटन। ये लो, अब जल्दी से मेरे को ये दो इक्वेशन पता करके एफ ए बी और एफ ए ई निकाल के बताओ। अब इसमें मेरे को ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि एफ ए बी को आप ऐसे रखोगे ही नहीं। क्या करोगे एफ ए बी का? सर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे इसको। यस, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये हालांकि आपको दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप एफ एच और एफ बी की इक्वेशन बना सकते हो।
लेकिन कर क्या रहे हैं अपन यहाँ पर, ये मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं एक जॉइंट का आपको करके बताऊंगा, उसके बाद आप अगला कर लेना, ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज you are splitting FAB in such a way so that this vertical component becomes कितना होगा बताओ FAB? FAB sin 60. This will be sin 60 and this horizontal component will be FAB cos 60 और उसके साथ में FAE तो इधर को लग ही रही है, वो यही रहेगा, और एक वर्टिकल फोर्स और आ गई आपकी R। अब हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, सीधे सीधे इसका सब्स्टिट्यूट करके करना है, ठीक है। अब इसको जल्दी से करके मेरे को ये बताओ FAB और FAE की वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस या माइनस जो भी आ रही हो, टेल मी एग्जैक्टली एज इट इज। वन 143 और 125। नहीं सर -145/√3। सॉल्व करके बताओ ये √3 वगैरह कितना है। सर 83.71। हाँ ये करेक्ट आंसर है। 83.71 प्लस है कि माइनस है? सर माइनस। माइनस। ये साइन बहुत जरूरी है। अभी आप इस चीज को बिल्कुल ऐसे ही यूज करें, इसको शॉर्टकट में ले जा करके अपना इंट्यूशन अपना यूज करें, ठीक है। तो जैसा अगर मैं ये कहूं कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज 0, देयर आर टू वर्टिकल फोर्सेस FAB sin 60 एंड RA, बोथ आर पॉजिटिव। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, RA प्लस, RA को पॉजिटिव लिया, प्लस FAB sin 60 को भी पॉजिटिव लिया, और इसका समेशन इक्वल टू 0 रखा। RA की वैल्यू मुझे पता है 72.5 है, प्लस FAB sin 60 इक्वल टू 0। तो अब FAB कैसे निकलेगा? इट शुड बी -72.5 डिवाइडेड बाय sin 60। इसमें आप काम चोरी ना करें, क्योंकि ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपने जो डायरेक्शन FAB की ली थी उसको पलटना है या नहीं पलटना है। मतलब FAB और FAE की जो डायरेक्शन है ये आपने अज्यूम की थी ना, तो एजम्पशन बाद में जाके करेक्ट होता है आपका, एंड दैट करेक्शन इज मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ द साइन। तो ये साइन आपको यूज करने के लिए आपको ये इक्वेशन एज इट इज यूज करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये दो फोर्सेस हैं तो एक फोर्स दूसरे के इक्वल होगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब अपन को ये पता लगा ये कितना आ रहा है, दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -83.7, 41। ठीक है। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, लीव इट एज इट इज। अब क्या करोगे? नाउ यू कम टू दिस वन FA, अब ये वाला इस पे आ जाओ, इन दोनों पे, ठीक है। अब FAB पता लग गया है, तो अब मैं ये वाला यूज करूंगा, समेशन ऑफ FH इक्वल टू 0। तो उसमें मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा FAE पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है, प्लस FAB cos 60 भी पॉजिटिव फोर्स है। इन दोनों का समेशन किया तो दिस शुड कम आउट एज इक्वल टू 0। बट नाउ आई हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ FAB, और अभी मैं कंप्रेसिव टेंसाइल की बात ही नहीं करूंगा। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि FAB की वैल्यू कितनी है, -83.72 है। तो अब मैं FAB के अंदर एग्जैक्टली विथ द साइन इसमें फीड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? नाउ माय इक्वेशन बिकम्स दिस इक्वेशन, FAE
प्लस माइनस ऑफ 83.72 cos 60 इक्वल टू 0। अब इससे एफ ए ई कितना निकल के आएगा? 83.72 cos 60 निकल के आएगा, सर which is 41.86। 41.86। हाँ, तो एफ ए ई का मेरा फाइनल आंसर आ गया प्लस 41.8। 6 अब मैं बताता हूं कि इसको अब फाइनली क्या करना है। ठीक है, आपने एफ ए बी और एफ ए ई दोनों निकाल लिए। एफ ए बी की वैल्यू नेगेटिव थी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप ये डिक्लेयर करोगे कि एफ ए बी तो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब एफ ए बी का जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया था वो गलत था। एफ ए बी एक्चुअली योन। ठीक है, और एफ ए ई की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब जो वैल्यू मैंने अज्यूम की थी, सॉरी जो डायरेक्शन अज्यूम किया था, दैट वाज ऑलरेडी करेक्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इस स्टेज पे आप कैसे कह सकते हो कि कौन सी फोर्स कंप्रेसिव है, कौन सी फोर्स टेंसाइल है? अब इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। ये चीज अब आप वापस से एक बार मन में गांठ बांध के रख लीजिए, कैसे इसको डिसाइड करना है। फोर्सेस, ये मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कमिंग इनटू द जॉइंट आर कंप्रेसिव, इनटू कंप्रेसिव। Forces going out of joint are tensile। ठीक है, इसके पीछे ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसका रीजन भी मैं चाहूं तो अभी डिस्कस कर सकता हूं। डू यू वांट मी टू टेल यू व्हाई दिस इज सो? कि एक तो है कि बस रट लो, सर ने बोल दिया कि जॉइंट से बाहर को जाती हुई फोर्स है तो उसको टेंसाइल मानना है, और जॉइंट पे आती हुई फोर्स है तो कंप्रेसिव है। अब इसका नेचर पहले तो मेरे को इसका नेचर देख के बताओ। एफ ए बी जो फोर्स है, इसको मैं कंप्रेसिव डिक्लेयर करूं कि टेंसाइल डिक्लेयर करूं? सर कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, क्योंकि ये फोर्स जॉइंट ए के अंदर को आ रही है, सो दिस इज कंप्रेसिव। इसको नेगेटिव फोर्स नहीं बताएंगे, आप इसको बोलेंगे दिस इज compressive force। और FAE is going out of the joint A, so you will not declare it as a positive force, ये तो अपनी कैलकुलेशन के लिए था, you declare it as a tensile force। ठीक है, और अब आप अपने आंसर को रेक्टिफाई करेंगे। You will not leave your answer by saying that FAB is minus 83.72। Now you rectify it and write it as FAE 41.86 kilonewton tensile and FAB 83.72 compressive। अब आपने करेक्शन करके इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, तो आपने एक जॉइंट का एफबीडी बनाया और फाइनली उसको टेंसाइल और कंप्रेसिव तरीके से बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग एज अ होमवर्क अपने घर पे कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास अपनी कल जब आएगी तो मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बताऊंगा, फाइनल आंसर विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, नाउ यू गो एंड ड्रॉ द एफबीडी ऑफ जॉइंट बी, देन यू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ जॉइंट सी, और उसमें जो जो अननोन फोर्सेस हैं उसमें आप पहले तो सारी फोर्सेस को आउटगोइंग अज्यूम कर लो, सारी फोर्सेस को बाहर को जाते हुए अज्यूम कर लो, और उसके बाद अगर वो फोर्स निकल के आती है नेगेटिव तो उसको करेक्ट कर लो बाद में, और उसके बाद टेंसाइल है कंप्रेसिव है, उसका नेचर ये देख करके पता कर लो कि फोर्स आपके जॉइंट पे आ रही है या जॉइंट से जा रही है। इफ इट इज कमिंग इनटू द जॉइंट इट इज कंप्रेसिव। अच्छा, अब एक चीज और आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बता दूंगा, एफ ए बी कंप्रेसिव पता कर लिया ना अपन ने,
ठीक है, यस सर। इसका मतलब है कि इसका जो नेचर है वो एक्चुअली ऐसे आ रही थी, ये फोर्स एफ ए बी, सिंस इट वाज कंप्रेसिव सो इट मस्ट बी कमिंग इनटू द जॉइंट ए, राइट, ए के एफबीडी से। यस सर। लेकिन अगर मैं मेंबर ए बी को अलग से बनाऊं तो क्या कंप्रेसिव फोर्स में ऐसे दिखाऊंगा क्या? नो सर। नहीं, यस सर। कंप्रेसिव फोर्स कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। तो इसमें काफी कंफ्यूजन की गुंजाइश है। अब देखो, पहले तो आपको मैंने कहा कि जॉइंट ए का एफबीडी बनाओ और जॉइंट ए के तरफ को कोई फोर्स आ रही है तो उसको कंप्रेसिव बोलो, तो आपने बोला ठीक है कंप्रेसिव हो गया। लेकिन जब मैं ए बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो कंप्रेसिव फोर्स पर ऐसे बनाऊंगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये पलट क्यों गया, कोई बता सकता है? भाई मैं जब जॉइंट का एफबीडी बना रहा हूं तब तो ए के अंदर को आ रही है फोर्स, और जब मैं ए बी रॉड बना रहा हूं तो ये फोर्स का डायरेक्शन पलट गया, ऐसा क्यों हुआ? कोई सर आइडिया? ये बी साइड से लग रही है और ए साइड से भी तो फोर्स लग रही है ना सर। नहीं, इसका रीजन सिंपल इतना है कि आप एफबीडी दो अलग अलग चीजों की बना रहे हो। जब मैं रॉड ए बी को बना रहा हूं तो किसका एफबीडी बनाया है मैंने? जॉइंट ए का बनाया कि रॉड ए बी का बनाया है? जॉइंट ए का बनाया सर। नहीं, जब रॉड Rod ए AB बी को मैं पिक्चराइज कर रहा हूं तो मैं रॉड का एफबीडी बना रहा हूं, और एफबीडी का नियम ही ये है, यू हैव टू ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। और जब जॉइंट ए का एफबीडी बनाऊंगा तो मैं वो फोर्स ड्रॉ करूंगा जो जॉइंट ए पे लग रहा है, और जब ए बी रॉड बनाऊंगा तो मैं वो फोर्सेस बनाऊंगा जो रॉड ए बी पे लग रही है, इसीलिए ये फोर्सेस पलट जाती है। भाई ये सीधी सी बात है ना, एक ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखा हुआ है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाऊंगा तो जमीन और ऑब्जेक्ट का रिएक्शन बनेगा, और अगर मैं जमीन का एफबीडी बनाऊंगा तो उस पे ऑब्जेक्ट की फोर्स लगेगी, यस सर। है कि नहीं? तो इसी के कारण ये पलटता है, क्योंकि जब आप रॉड को दिखा रहे हो तो आप ए बी का एफबीडी बना रहे हो तो उस पे कंप्रेसिव फोर्स तो ऐसे दिखाओगे, लेकिन जब जॉइंट ए का एफबीडी बनाते हो तो जॉइंट ए को क्या फील हो रहा है? अगर ए बी कंप्रेस हो रहा है तो इसके कंप्रेशन के कारण जॉइंट ए पे यों ही तो प्रेशर लगेगा ना, यस सर। इसीलिए ये पलटता है, ठीक है। सो एनीवे, we will stop the lecture here. Now this is a homework for you. So those people who are seriously pursuing your education, मैं अभी भी जानता हूँ कई सारे लड़के हैं जो कि बहुत ही अपना नुकसान कर रहे हैं। Many students, I don't even know whether they are listening or not. शायद आखिरी के 1 मिनट में थोड़ा बहुत आ जाते हैं ये अटेंशन में, अटेंडेंस के लिए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इफ, क्योंकि आपने एग्जाम में भी सभी लोगों ने कॉपी किया है, 4 या 5 लड़कों ने इंडिविजुअली सॉल्व किए हैं, बाकी पूरी क्लास कॉपी करती है, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन आरटीओ एग्जाम में ये बहुत नुकसानदायक होने वाला है अब आपके। बट एनीवे, दोज हु आर सीरियसली परस्यूइंग योर एजुकेशन, प्लीज सॉल्व दिस कंप्लीट प्रॉब्लम, और इस फिगर को तैयार करके रखें। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इसमें सारे फोर्सेस निकालनी है और इसके सारे फोर्सेस का नेचर इस ट्रस में शो करना है। So be prepared with that answer. In the next class, I will give you the answer and then we will move on to the next question. ठीक है? ओके। ओके सर। Okay, I will just take your attendance. Please wait.